Hello everyone, welcome to my channel Physics Tricks. So let's start with our kinematics part, and in this, as you can see, this is the first question, right? So ये सारे questions मैंने beginner level से लिए हैं, and as you can see in this first question, a body moves along a straight line from A to B. यहाँ से B की तरफ A to B, then B to C, B से C की तरफ, then C to D, then D to E and E to F. तो एक बॉडी जो है वो ऐसे कुछ ट्रैवल की है. इफ ए बी इज इक्वल टू 3 मीटर, तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है 3 मीटर दिया है. बी सी इज इक्वल टू 4 मीटर, ये बी सी जो है 4 मीटर दिया है. एंड सी डी इज इक्वल टू 5 मीटर, दिस इज 5 मीटर. डी ई इज 4 मीटर, ओके. एंड ई एफ इज इक्वल टू व्हाट, 2 मीटर. तो यहाँ पर ये जो है 2 मीटर दिया है. तो हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं. ये 4 मीटर, ये 5 मीटर, तो दिस मस्ट बी 1 मीटर. और ये 2 मीटर टोटल, तो दिस इज अगेन 1 मीटर. इफ दिस इज 1 मीटर, दिस मस्ट बी 3 मीटर. ठीक है ना. तो ये सारे डिस्टेंसेस हमको पता चल गए. फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू एफ फॉर बॉडी. सो वी वांट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. सो फर्स्ट वन, we know that distance is the actual path traveled by an object. ठीक है ना. So distance is the actual path traveled by an object and displacement is the shortest distance between the 2 points, isn't it? So actual path traveled by an object, A to B 3 meter, then B to C 4 meter, C to D 5 meter, D to E 4 meter, E to F 2 meter. So add all these distances. It is 3 plus 4 7 plus 5 12 plus 4 16 plus 2, it is 18 meter. So for the first one, distance is equal to, distance is the actual path, that is why I am adding all this. So it is 18 meter. So this is the distance traveled by a body from A to F. Okay. What is the displacement? Displacement is the shortest path between the initial and the final point. So as you can see, this is the shortest path and this is the displacement. So you can write displacement is the shortest distance between 2 points, isn't it? 2 points, and the displacement we have is from E to F, it is 6 meter. So that's why displacement we have is 6 meter and the distance we have is 18 meter. So I hope this is clear to you all. Now second question, find the distance and displacement from C to F for body. Okay, so for C to F, as you can see over here, C से start किया 5 meter, then 4 meter, then again F 2 meter. So 5 plus 4 9 plus 2 11. So over here distance, I'm writing directly now, is equal to 11 meter actual path traveled. And what about the displacement? It is the shortest distance between the 2 points, and displacement we have is equal to C to F distance we want, that is 1 meter only, isn't it? Okay, direction if you want, it is towards the negative x-axis, and for this, if you want the direction, it is positive x-axis. Okay. So all these questions are very simple if you understand the concept. Find the distance and displacement from B to E. From B to E, we want distance and displacement. So as you can see, B to F, we have what is called as B to C 4 meter, C to D 5 meter, D to E 4 meter. So 4 plus 5 9 plus 4 13 meter. So for third one,
distance we have is 13 meter. And what about the displacement? Displacement we have is shortest distance between the 2 points, B to E, shortest distance we want. B to E, shortest distance is 3 plus 1 plus 1, that is 5 meter. So displacement is 5 meter in the positive x axis. So I hope all these things are clear to you all. So this is the first question and these are the answers which we have. Okay, so I hope this is clear to you all. Chalo, next one we have, and that is the for uniform motion, uniform accelerated motion, right? We have, these are the three equations. V is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at squared, v squared is equal to u squared plus 2as. What each symbol represents and which physical quantity in these equations are constant. Okay, so over here v is nothing but the final velocity, u is nothing but the initial velocity, s is nothing but the displacement, a is nothing but the uniform acceleration, and yes, these equations are valid only for uniform acceleration. T is the time. And yes, what does this each symbol represents? V we have final, u initial, s displacement, a acceleration, t time. Now we want which of the following symbols are constant. So it is u which remains constant. ठीक है ना, यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी फॉर अ गिवन क्वेश्चन, है ना. अगर मैंने बोला कि कार स्टार्ट्स विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते फॉर द गिवन क्वेश्चन, है ना. कार ऑलवेज स्टार्ट्स विद वेलोसिटी देन 2 मीटर पर सेकेंड फॉर द गिवन क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बोल सकते हैं कि सेम कार अब 5 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट हुई है ना. तो फॉर अ गिवन क्वेश्चन इनिशियल वेलोसिटी विल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डू रिमेंबर दिस. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, third question, as you can see over here, a body starts from rest and moves with uniform acceleration 5 meter per second squared for 8 seconds. From that time the acceleration ceases. Ceases means acceleration becomes zero. Find distance covered in 12 seconds starting from rest. Okay, so they are saying always draw the diagram if you didn't understand the question, right? It will be very simple if you draw the diagram. A body starts from rest indicates initial velocity is 0 meter per second. It is always constant now. Initial velocity is always constant, 0 meter per second. And moves with uniform acceleration 5 meter per second squared. Acceleration is given 5 meter per second squared for 8 seconds. 8 seconds के लिए ये हुआ है. उसके बाद acceleration 0 हो गया. Acceleration 0 होने का मतलब क्या बोल सकते हैं velocity 0? नहीं, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है. फिर वेलोसिटी कितनी होगी? v = u + at, उससे निकाल लेंगे, है ना. ओके, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 12 सेकंड, मतलब ये 4 सेकंड का हमको डिस्टेंस निकालना है. पहले तो 8 सेकंड का डिस्टेंस निकालो, फिर 4 सेकंड का निकालो. फिर पहले 8 सेकंड का निकाल देते हैं. s = ut + half at squared, ut + half at squared, तो which is equal to s1, that is equal to initial velocity 0, टाइम कितना दिया है 8 + half, a कितना हुआ 5 इंटू टी स्क्वायर मतलब 8 स्क्वायर. तो यहाँ से हम हमारा जो आंसर आ जाएगा दिस विल बी 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 64 विच इज इक्वल टू 5 इंटू 32 विच इज इक्वल टू 0. 5 2 10, 5 3 15, 60, 160 मीटर. S1 हो गया. अब हमको निकालना होगा यहाँ की वेलोसिटी. अभी एक्सेलरेशन तो 0 है, s = ut से निकाल सकते हैं. यहाँ की वेलोसिटी कितनी हुई? v = u + at, u तो 0 है, तो u तो 0 है यहाँ पर, प्लस a कितना है 5 इंटू 8 यानी कि t, ये हो गया 40 मीटर पर सेकेंड, मतलब 40 मीटर पर सेकेंड से ये जा रहा है इधर. ठीक है, तो अब s2 निकालो. s2 कितना हुआ? ut + half at square. a की जरूरत ही नहीं है, u इंटू टी डायरेक्टली. u कितना है इस 4 सेकेंड के लिए? u कितना है
40 इंटू टी कितना है, टी देखो 4, तो यहाँ पर 160 मीटर आ जाएगा। तो हमारा जो टोटल डिस्टेंस है s इज इक्वल टू s1 प्लस s2 हो जाएगा, दैट इज द टोटल डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा 160 प्लस 160 विच इज इक्वल टू 320 मीटर। सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ, इट्स वेरी सिंपल इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, दिस इज 320 मीटर इज द आंसर, ठीक। So this is the third question which we have. Now the fourth question, a stone is allowed to fall from the top of a tower 300 meter height, ठीक है ना। 300 meter height का एक टावर दिया है, and at the same time another stone is projected vertically up from the ground with a velocity 100 meter per second. Find when and where the two stones meet. ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक दिया है, दिस इज द टावर सपोज टू बी, ठीक है, और इसका जो हाइट है वो दिया है समवॉट लाइक 300 मीटर, ठीक, और स्टोन इज अलाउड टू फॉल, स्टोन है अलाउड टू फॉल, और एट द सेम टाइम दूसरा स्टोन जो है वर्टिकली अप 100 मीटर पर सेकेंड से भेजा गया है। तो हमको निकालना है when मतलब टाइम, where मतलब डिस्टेंस, ठीक है। तो ठीक, तो यहाँ से देखो अब हमको निकालना है व्हाट इज द टाइम एंड द डिस्टेंस, ठीक। तो लेट अस कंसीडर ये दोनों इस पॉइंट पे मिलते हैं, ठीक है। तो एक स्टोन यहाँ पर, एक स्टोन यहाँ पर, ठीक है। तो इसने अगर डिस्टेंस कवर किया सपोज कर लो s, तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा 300 माइनस s, है ना, टोटल इज 300, 300 माइनस s, ठीक। अब ये जो टाइम लगेगा, इसको टाइम t लगेगा अगर नीचे आने में, इसको ऊपर जाने में कितना लगेगा, t लगना चाहिए, है ना, टाइम t पे वो दोनों मिल रहे हैं। तो ठीक है, तो इक्वेशन लिखो डिस्प्लेसमेंट का, माइनस ऑफ 300 माइनस s, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है, इज इक्वल टू u कितना है उसका 0, हाफ a कितना है माइनस g इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1 फॉर दिस स्टोन। अब डाउनवर्ड स्टोन के लिए प्लस s, क्यों, क्योंकि वो s जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, u कितना 100 इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ। तो s यहाँ पर पुट कर लो, तो ये माइनस 300 प्लस 100 टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये और ये कैंसिल हो जाएगा और हमको मिल जाएगा 100 टी इज इक्वल टू 300 एंड यस टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड। सो ये बहुत ही सिंपल तरीके से, अब ये रिलेटिव मोशन से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये रिलेटिव मोशन जब मैं पढ़ाऊंगा तब ये जो सेम क्वेश्चन है रिलेटिव मोशन से भी हम सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। सो अभी तो मैंने नॉर्मल मेथड से किया है। ओके, सो नेक्स्ट वन वी हैव वेयर द टू स्टोन्स विल मीट, वेयर इंडिकेट्स द डिस्प्लेसमेंट वी हैव टू फाइंड और डिस्टेंस वी हैव टू फाइंड। सो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, 100 इंटू टी कितना है 3 माइनस हाफ जी 10 इंटू टी स्क्वायर मतलब 9। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 300 माइनस 45 विच इज इक्वल टू 255 मीटर पे ये जो दोनों स्टोन है वो मिल जाएंगे, लेकिन 255 मीटर फ्रॉम द डाउनवर्ड, तो अपवर्ड से कितना होगा 45 मीटर। सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ। तो यहाँ से ये बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा आपको। दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन विच वी हैव। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन, a stone dropped from the top of a long pole crosses 2 points separated by 20 meter in 1 second. Find the distance of first point from the top of the pole. Okay, so we have a pole as you can see over here. One stone is dropped, indicates initial velocity is 0 meter per second. It crosses 2 points in 1 second. 20 meter distance is given. We want this distance s supposed to be. So we have s plus 20 in
t plus 1 seconds and s in t seconds. So s is equal to ut plus half a t squared you can use. So minus s is equal to u to 0 half a is minus g into t squared. So you can directly write s is equal to 5t squared. This is equation number 1. Likewise s plus 20 के लिए लिख सकते हैं, that is minus of s plus 20 is equal to half minus g t plus 1 no whole squared. तो यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ऐसे की जगह पर 5t स्क्वायर पुट करो प्लस 20 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 और यहाँ से ये 5t स्क्वायर प्लस 20 इज इक्वल टू, अगर इसको सॉल्व करोगे 5t स्क्वायर प्लस 10t प्लस 5 तो ये कैंसिल, तो दिस विल बी 15 इज इक्वल टू 10t. तो यहाँ से t इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड्स. आप देख सकते हो t जो है वो 1.5 सेकेंड्स है. तो डायरेक्टली अब यहाँ पर पुट करो तो s इज इक्वल टू आ जाएगा आपको 1/2 इंटू g कितना है 10 इंटू 1.5 होल स्क्वायर इज 2.25 विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू दिस इज 22.5. सो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 11.25 meters. 11.25 meters. That is the answer for the given question. So sixth question देखो, a body thrown up with a certain velocity reaches maximum height of 100 meter. Find the maximum height of another body with double the mass thrown up with double the initial velocity. So maximum speed as you can see is maximum height as we can see u square divided by 2g is the maximum height which we have. And in this expression there is no mass present. तो हम बोल सकते हैं कि मास कितना भी हो it totally depends on the initial velocity only. तो यहाँ पर जो body thrown up with a certain velocity reaches maximum height of 100 meter. Find the maximum height of another body with double the mass and thrown double with the initial velocity. So firstly we'll find out the initial velocity. Maximum height कितना हुआ है 100 is equal to u square divided by 2g. तो यहाँ से initial velocity हमको मिल जाएगी and that is 20 into 100. So we have u is equal to 10 root 20. So this can be written as 20 root 5 meter per second. So this is the initial velocity. Maximum height when we throw it with the double the initial velocity, that is 40 root 5 whole square divided by what is called as the 2g, 2 into 10, so which is equal to, this is 1600 into 5 divided by 20. So this 0 get cancelled, and as you can see this is 80 into 5. So maximum height we have is 400 meters. 400 meters. Okay. So seventh question, a body is dropped from a height h and a second body is thrown vertically up from the ground with a velocity of root of gh simultaneously. At what height from the ground do they meet? So same question जो अभी हमने किया था फर्स्ट या सेकंड. तो देखो यहाँ पर एक बॉडी जो है वो ड्रॉप की है और दूसरी बॉडी वर्टिकली अप थ्रो की है विथ वेलोसिटी रूट gh. तो हमको निकालना है कि एट व्हाट हाइट दे विल मीट. तो लेट अस कंसीडर यहाँ जो है ये s है, ये टोटल अगर हाइट h कंसीडर की हमने तो ये कितना हो जाएगा h माइनस एस. तो बस s के लिए और h माइनस एस के लिए इक्वेशन लिखो. माइनस एस इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर और माइनस ऑफ h माइनस एस इज इक्वल टू नो प्लस होगा क्योंकि ये अपवर्ड है ना, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर रूट जी एच इंटू टी प्लस हाफ ए तो माइनस जी इंटू टी स्क्वायर. तो यहाँ पर पुट करो, यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस हाफ जी टी स्क्वायर तो विच इज इक्वल टू रूट जी एच इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. तो ये और ये कैंसिल, तो एच इज इक्वल टू आ जाएगा रूट जी एच इंटू टी. तो यहाँ से जो t है हमारा वो आ जाएगा h डिवाइडेड बाय रूट जी एच विच इज इक्वल टू रूट ऑफ h डिवाइडेड बाय g. अब देखो ये टाइम जो है ये टाइम यहाँ पर पुट करो तो
हमको मिल जाएगा s विच इज इक्वल टू हाफ g इंटू टी स्क्वायर मतलब h डिवाइडेड बाई g, तो g गेट कैंसल विच इज h डिवाइडेड बाई 2 इज द आंसर। तो देखो बहुत सिंपल होते हैं इफ यू नो द कॉन्सेप्ट, राइट। तो यहाँ पर मैंने s को लिखा है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के टर्म्स में, फिर h माइनस एस को लिखा है अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव, तो ये सारे टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए। तो 8th क्वेश्चन देखो, इफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन द लास्ट सेकंड ऑफ इट्स जर्नी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल इन द फर्स्ट 2 seconds, फाइंड द टाइम ऑफ फॉल। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द लास्ट सेकंड्स इन दैट सेकंड इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल इन द फर्स्ट 2 seconds। तो nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट जो है वो हम लिख सकते हैं u प्लस a बाई टू मतलब माइनस g बाई टू इंटू 2n माइनस वन इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल इन द फर्स्ट 2 seconds, तो ये हो जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी है तो u तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -5 2n माइनस वन इज इक्वल टू u तो 0 ही है, तो ये -5 इंटू 4, तो -5 गेट कैंसिल, यहाँ से मिल जाएगा 2n माइनस वन इज इक्वल टू 4, तो 2n इज इक्वल टू 5, तो यहाँ से n इज इक्वल टू 2.5। देखो कितना सिंपल हो गया ना, अगर आप Sn और S2 एक साथ लिखोगे तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। रेन जो है वर्टिकली डाउनवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। अ गर्ल मूव्स ऑन अ स्ट्रेट रोड विद अ वेलोसिटी ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। जो गर्ल है वो हॉरिजॉन्टली जा रही है 3 किलोमीटर पर आवर से। फाइंड द अपरेंट वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू गर्ल। तो ये 3 किलोमीटर पर आवर से जा रही है और ये 4 किलोमीटर पर आवर से वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल हो रहा है, ठीक है। तो अपरेंट वेलोसिटी मतलब रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज अ रेन विथ रिस्पेक्ट टू गर्ल इज वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ गर्ल। तो हमको वेक्टोरियली इसका एडिशन करना है, राइट। माइनस द वेलोसिटी ऑफ गर्ल मतलब इसको इस साइड लेना है और इसका रिजल्टेंट लेना है, दैट्स इट। तो इसका रिजल्टेंट कैसे लेंगे, ये 90 डिग्री पे है, तो हम इसका रिजल्टेंट लेंगे v velocity of rain with respect to girl, magnitude we have is root of velocity of rain squared plus velocity of girl squared plus 2 times velocity of rain into velocity of girl into cosine of angle between them, है ना। तो which is equal to root of, ये हो जाएगा velocity of rain is 4 squared plus velocity of girl 3 squared plus 2 into velocity of rain 4 into velocity of girl 3 into cosine of angle between them is 90 डिग्री। तो मैंने ये और ये लिया है ना, ये और ये लेता तो माइनस साइन यहाँ पर, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। तो रूट ऑफ 16 प्लस 9 cos 90 तो 0 है, प्लस 0 लिखना है तो लिख सकते हैं, और रूट ऑफ 25 विच इज़ 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस इज द 9th क्वेश्चन। नाउ 10th क्वेश्चन, अ बॉडी फॉल्स फ्रीली फ्रॉम अ हाइट 25 मीटर। आफ्टर 2 seconds gravity ceases to act, find the time taken by it to reach the ground। तो ये आखिरी क्वेश्चन है हमारा 10th क्वेश्चन, एंड वी हैव a body falls freely from 25 मीटर, ठीक है। फाइंड टाइम टेकन बाय इट टू रीच द ग्राउंड। तो इसको मतलब टाइम कितना लगेगा वो निकालना है। आफ्टर 2 seconds जो है ग्रेविटी सीजेस टू एग्जिस्ट मतलब 0 हो जाती है, तो इसमें टाइम कितना लगेगा और इसके बाद इसमें टाइम कितना लगेगा। चलो लेट्स सी। तो देखो यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगेगा, इसको 2 seconds। तो फ्रॉम हाइट 25 मीटर, ओके। तो 2 seconds में पहले निकाल लेते हैं कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है। एस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू तो 0 है, हाफ a इंटू टी स्क्वायर, ए मतलब 5 इंटू टी स्क्वायर मतलब 4, तो ये हो जाएगा सॉरी 10 हो जाएगा ये 10, तो ये 2 मतलब 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ये, ओके। तो उसके बाद बस 5 मीटर का डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रैवल करेगा, है ना। तो 5 मीटर का डिस्टेंस तो विथ कांस्टेंट वेलोसिटी ट्रैवल करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है ग्रेविटी कितनी है 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सीजेस टू एग्जिस्ट।
तो वेलोसिटी निकाल लो, v इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u तो 0 है, हाफ सॉरी ut प्लस at, तो ये कितना है 10 इंटू t कितना है 2, तो ये 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। सो टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस विच इज़ 5 डिवाइडेड बाई स्पीड विच इज़ 20, तो यहाँ से मिलेगा आपको 0.25। तो टोटल टाइम जो है आप लिख सकते हैं 2 प्लस 0.25 which is 2.25 seconds. So I hope this is clear to you all. So these are the 10 questions which I gave. All these questions are very important. ये beginner level के questions हैं तो मैंने fast किए हैं, और किसी को कुछ doubt होगा तो they can comment. Thank you so much.